Students and dear friends, welcome to my channel GP classes of Gravity Point of online classes for RBC 12th class of English medium students and subject is physics. Okay, in previous lecture we will discuss about we will solve the numerical of unsolved numerical of your textbook. Okay, Rajasthan book, and we are completed the 7 numericals of the your unsolved numerical, and today we are solved 8 numerical number 8. Two metallic surface of area 1 meter square are placed at 0.05 meter parallel to each other. Both have same magnitude of charge but opposite in the direction. If the electric field what is between them is 55 volt per meter, then what would be the charge on it? Solution: given it, what we done, area 1 meter square, correct, and distance between the plate. Consider distance between the plate is 0.5 meter to each other. Both have same magnitude of same, and electric field E is 55 volts per meter. Okay, plate is metallic, means conducting plate. We know that for conducting plate electric is equal to Q upon epsilon naught. Okay, and what we done, sigma upon epsilon naught. Okay, and value of sigma is equal to Q upon area, total charge and area. In this numerical not be divided in Q divided by 2 because we find out the charge, okay, magnitude of the charge. Okay, then what we done, E is equal to Q upon A epsilon. Okay, find out the Q is equal to A epsilon. Value of E is equal to 55, 1 into 8.85 10 to the power minus 12. Solve it, and the answer is Q is equal to 8.75 10 to the power minus 10 coulomb. 4.87 10 to the power minus 10 coulomb. Okay, it is clear. Okay dear student, let's see one thing. देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेटेलिक प्लेट की बात किया तो फॉर्मूला ऑफ मेटेलिक प्लेट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, करेक्ट. देन Q इज इक्वल टू Q अपॉन A. पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन. ओके, अगर मैं वन साइडेड की बात करूंगा तो Q कितना डिवाइडेड हो जाएगा, Q/2. तो यहाँ कितना आएगा, करेक्ट, एनी डाउट. अब मैं Q अपॉन A को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा. तो कई जगह ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. तो मेरे से स्टूडेंट पूछ रहे थे सर ये क्यों अप्लाई हो रहा है, ये तो नॉन कंडक्टिंग के लिए. अरे मेरे भाइयों, यहाँ तो है किसके लिए, मेटेलिक के लिए, लेकिन एक प्लेट की बात करते हैं. जैसे सपोज करो मेरा हैंड ए है, इसको Q चार्ज दिया है, तो Q चार्ज इधर आएगा पूरे ओवर पे, तो Q/2 होगा ना, क्योंकि हाफ हाफ होता है, सिमेट्रिकल डिवाइडेड होता है, इसलिए ये फॉर्मूला है. तो ये फॉर्मूला हम लोग जनरली कहीं पे भी ये आपको देखेगा भी सही, कई जगह दिखेगा और हम लोग यूज भी नहीं. इट इज क्लियर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, next numerical is a particle of mass 9 into 10 to the power minus 5 gram is placed on a uniform charged long horizontal sheet of surface. Charge density is 5 into 10 to the power minus 5 coulomb per meter square. How much should be the charge on the particle so it not would be fall when left freely? मीन्स क्या बोला हमने कि एक पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल का मास कितना गिवन है, देखना. लेट इट सी, m is equal to
what is 9 into 10 to power minus 9 gram, multiple by 10 to power minus 3 converted to the kg, means m is equal to 9 into 10 to power 8 kg. Any doubt? Okay, after that his charge density given is 5 into 10 to power 5 minus meter square. Okay, हाउ मच शुड इट चार्ज फ्री? देखो क्या बोला है कि पार्टिकल्स है और मैंने इसको फ्रीली छोड़ देने का है ना, और इसको कितना चार्ज करें कि ये क्या करें हम लोगों के पास गिरे नहीं, मतलब इसके अपोजिशन में, ग्रेविटेशन के अपोजिशन में क्या लगना चाहिए फोर्स, भाई इधर गिरने का है, गिर गया ना, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, इस ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट ही तो काम करना पड़ेगा, जैसे ये इधर गिरने का है, अब ये गिरना नहीं है, ये फ्रीली छोड़ने के बाद क्या हो जाए, यहाँ रुक जाए, मीन्स जो डायरेक्शन नीचे ग्रेविटेशन फोर्स के उसके अपोज में क्या लगना चाहिए, अनदर फोर्स, वो डिफरेंट होते हैं, जैसे बायोन्सी फोर्स भी हम लोगों ने देखे हैं, है ना, लेकिन अभी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स की। क्यों बात करना है इलेक्ट्रिक फोर्स की, क्योंकि क्या बोला हम लोगों के पास चार्ज की कितना चार्ज करें, मतलब कोई इधर गिरने का है उसको इतना अपोजिशन में हमने फोर्स दे देना है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कि वो क्या हो जाए मेरे पास चार्ज हो जाए, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Fe electrostatics force is equal to ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों बैलेंस होंगे तभी नहीं गिरेगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स रिप्रेजेंट बाय Fe and gravitation force represented by Fg. Any doubt? Okay, we know that Fe is equal to what is QE, चार्ज की बात किया है ना, तो Q और F G is equal to mg, gravitational force, correct or not? So both are the equilibrium condition, QE is equal to mg. Okay, QE is equal to mg. Then find out the value, QE is equal to m multiple में g, where E is equal to, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, we know that E is equal to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, करेक्ट और नॉट? अभी सोल्व किया हम लोगों ने, तो Q is equal to mg अपॉन E, पुट वैल्यू ऑफ E, Q is equal to mg सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द मीन ऑफ mg मल्टीपल में 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा, Q is equal to what is the value of mg, what is 9 into 10 to power minus 8, what is the value of g, 9.8, what is the value of epsilon naught, 8.85 10 to power minus 12, and what is the value of sigma, what is 5 into 10 to power 5. Then you solved it, when we have solved it, then answer is approximately 3.14 10 to power minus 13, 3.14 10 to power minus 13 coulomb. Dear students, you checked it, because if you are because if I will solve, then the numericals are so long and so many time is consumed. Okay, write down. Okay, next question is 10 number, question number 10. In xy plane there is surface charge density okay, given that surface charge density, what is surface charge density, 5 into 10 to power minus 16 kilometers square on a long uniform charge sheet. Okay, a circular loop of radius r is 0.1 meter, makes an angle theta is equal to what is 60 degree. Okay,
then determine the electric flux through the loop. Okay, we know that phi is equal to E dot ds. Okay, then phi is equal to E ds cos theta. Okay, phi is equal to, what is the value of E is equal to, directly formula put up कीजिए 2 upon epsilon naught. What is the value of ds? What is the value of ds? Okay, circular loop, then pi r square and cos theta. What is the value of cos 60? Then phi is equal to, put the value of sigma. What is the value of sigma? 5 into 10 to the power minus 16 upon 2 multiple 8.85 10 to the power minus 12. What is the value of pi? What is the value of r? What is the value of r? 0.1 whole square. What is the value of cos 60? Then we have solved it. Then answer is 4.44. Phi is equal to 10 to the power minus 7 Newton meter square upon Coulomb. Okay, that is the answer. Okay, dear student, this is the question number 12. Okay, question number 11 is based on the chapter number 3rd, because one formula is included by voltmeter. Okay, sorry, voltage. Okay, or potential. So chapter 11, when we are consider about the, when we are teach or learn about the potential, after that we are solve the numerical number 11. Okay, the last numerical of the your textbook is the pressure inside and outside of the soap bubble is equal, means condition is given to the equilibrium condition. Okay, the surface tension of the bubble is given that surface tension T is equal to 0.04 Newton meter, and diameter of the bubble D is 4 centimeter, means radius is 2 centimeter, means 2 into 10 to the power minus 2 meter. Determine charge of the bubble. Okay, we know that maximum conditions RQ is equal to 4 pi root of H P epsilon naught RQ. This is a formula of charge Q, means 4 into 3.14 H. What is the value of surface tension? 0.04. Okay, what is the value of 8.85 10 to the power minus 12? And what is the value of R cube? 2 into 10 to the power minus 2 cube. Solve out 4 multiple में 3.14 8 0.04 multiple 8.85 10 to the power minus 12. Okay, what is the value of 8 cube is 8 and 10 to the power minus 6. When we are solved, then answer is 59.8 10 to the power minus 9 Coulomb, and the answer is 59.8 nano Coulomb in your textbook. Okay, this is the question number 12. Okay, your chapter number 12 is totally complete by with the unsolved numerical. Okay, after that the last topic we are consider, everybody you know, we are solved all question paper of related to your board exam. All board questions. Okay, today in this video we are include the all board questions exam. Okay, so okay, now we are discuss about the all board questions paper of the related of Rajasthan board of 12th. Okay, so first question is 2020 latest question है ना, and this is a numerical of marks 2 marks का numerical है राजस्थान बोर्ड में जो पीछे ही आया है. An electron is moving around an infinity linear charge in a circular path of diameter. Solution: diameter is 0.3 meter, mean radius is 0.15 meter, 0.15 meter. Okay, is the linear charge density. What is the value of linear charge density? 10 to the power minus Coulomb. Then calculate the speed of electron and given a mass given an electron given.
आप समझना, एक ना एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट बेस आता है जो कि रिलेटेड करता है हम लोगों के पास 11 से। इसके प्रीवियस ईयर में हम लोगों के पास एक आया था जिसमें हम सबको वेव फॉर्म का लिए पूछा था, और वो भी रिलेटेड था किससे, 11th के एक कंसेप्ट से। देखो क्या बोल रहा है, वो एक लीनियर है और लीनियर को हम लोगों को सर्कुलर पाथ पे लेके जाना है। तो जो बताइए एक चीज मेरे को, जो आपका फोर्स है, फोर्स है ना, आपके पास जो फोर्स है ये आप लोगों ने बैलेंस भी किया है, सर्कुलर फोर्स, यानी हम लोगों को बात करें सेंट्रलिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स किया है क्या। याद करो प्लेनेट वगैरह जब हम लोगों ने सैटेलाइट ली थी कि सर ये जो सेंट्रलिटिक फोर्स है आपका, सेंट्रिपिटल फोर्स है, यही क्या करता है हम लोगों को प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कराता है इसको सर्कुलर करने के लिए। यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू होगा सेंट्रिपिटल फोर्स, मीन्स Fe is equal to Fc. We know that Fe is equal to QE, correct, और Fc is equal to mv square upon r। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कैसे हुआ, देखो तो बेटा सोचना पड़ेगा कि देखो इन्होंने एक तो इलेक्ट्रॉन दिया ही हम लोगों को पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लिया है। क्यों आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सी हिंट दे रखी है कि हम लोगों के पास क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिकल की वैल्यू है, ई की वैल्यू है। अब वो घूम रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको सर्कुलेट कर रहा है, यानी फोर्स की है ना। उसके अलावा मास गिवन है हम लोगों के पास, देखो मास यहाँ पे भी नहीं गिवन है, जो सर्कुलर पाथ है, और उसके लिए कौन सा फोर्स है, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो डाउन करेगा उसको फ्रीली, तो सर्कुलर पाथ कौन कराएगा हम लोगों के पास, सेंट्रिपिटल फोर्स। दोनों को इक्वल रख रहा हूं, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू QE, इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। वी नो डेट, ये बना नहीं था वैसे क्वेश्चन काफी लोगों से, तो थोड़ा सा देख लीजिए। वी नो डेट E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, करेक्ट ना। E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, लीनियर के लिए। तो देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीपल एंड डिवाइड कर लूं तो कितना बनेगा, 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये मैंने पहले भी हिंट दिया था। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू k, 1 अपॉन पाई k इज इक्वल टू मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए मैंने क्या किया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r को 2 से मल्टीपल एंड डिवाइड किया, तो हो गया 2 लैम्डा, 4 कन्वर्ट हो गया तो कितना बना, 2k लैम्डा अपॉन i, क्लियर। आप कर लो पुट द वैल्यू, मैं रफ कर रहा हूं है ना, mv स्क्वायर अपॉन r एंड पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन व्हाट वी डन, 2k lambda upon r, cancel out to r and v square is equal to 2k lambda upon m, clear, okay। Now v square is equal to 2k की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9, lambda is given, yes, 10 की पावर -6 what is the value, okay, q is represent, q is inside because this is the value of E and q is also represent f mv square upon r is equal to QE, so value of q is equal to E is equal to 2q lambda upon r, and what is the value of q 1.6 10 की पावर -19 to multiple 9 into 10 की पावर 9, what is the value of lambda 10 की पावर -6 upon what is the value of mass of electron 10 की पावर -13, cancel out v स्क्वायर, स्क्वायर है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं ताकि स्क्वायर को सोल्व आउट कर सके, 10, ओके। 16 मल्टीपल 2, मल्टीपल मत करना, 10 की पावर -19 एंड 10 की पावर 9, यानी 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 एंड 10 की पावर -6 इज 10 की पावर -16 अपॉन 10 की पावर -30, ओके। सोल्व आउट, मैं सोल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आया हुआ, इसका आंसर नहीं गिवन ना आप लोगों को। 16 मल्टीपल 2 इंटू 10 की पावर -16 और 10 की पावर +30, सोल्व आउट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीपल में 2 इंटू 10 की पावर हाउ मच, 14, सोल्व आउट v इज इक्वल टू रूट ऑफ 16, v is equal to root of 16 multiple 2 into 10 की पावर 14, okay।
then what we done, what is done, b is equal to, what is the square of 16, root square is 16, 4 root 2 multiple 10 की power 14 meter per second, 10 की power 7 meter per second. If we are the value of, put the root of 1.44, 1 into 10 की power 7 meter per second. You solve it and give to the answer. Okay, चलें. Okay, next question is question number 2 of 2019 BSER Board of Senior Examination of Rajasthan is 2019 is major question. It is a question number 28 in your question paper. Okay, two part. The question number 28 is having of two part. Write the statement of Gauss law for electrostatics. तो उसके कितने मार्क्स हैं? हाफ. फिर उसके बाद है drive the experience of the electric field due to the uniform charge infinity non-conducting sheet of the, उसके कितने मार्क्स है? 1.5. ठीक है. और फिर ड्रॉ ए सुटेबल डायग्राम, उसका कितना मार्क्स है? 1. तो ये तो हम लोगों ने कर चुका है. स्टेटमेंट हम लोग लिख चुके हैं कि क्या आएगा, phi is equal to summation of 1 upon time of line epsilon naught. ओके, गाउस लॉ हो गया. उसके बाद ड्राइव द शीट नॉन कंडक्टिंग शीट, यू नो वेरी वेल 2 पॉइंट एप्सिलॉन नॉट इज प्रूफ आएगा. वो पूरा डायग्राम बनाएंगे, इधर की तरफ सिलेंड्रिकल लेंगे, इधर की तरफ डॉट में लेंगे. ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हम लोगों के पास cos थीटा 0, तो EDS, और इतना भी कितना हो जाएगा? EDS हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा? 2 EDS, और DS इज इक्वल टू कितना आ गया था हम लोगों के पास? S के साथ लिया था. ये किसके इक्वल रखेंगे? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रखेंगे. ठीक है ना. और फिर सोल्व आउट करेंगे तो ट्वाइस चला जाएगा. इधर भी S की वैल्यू आएगी ना, Q की वैल्यू सिग्मा अपॉन S, Q की वैल्यू रख देंगे तो S से S कट जाएगा. तो E की वैल्यू कितनी आएगी अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये हम लोगों ने ड्राइव किया था. ये पूरा ड्राइव करना है. इसके कितने मार्क्स हैं हम लोगों के पास? कितने मार्क्स है इसके? 2 मार्क्स है. जो सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द शेडेड रीजन. तो शेडेड रीजन ओनली मेरे पास ये वाला है, ये वाला ही शेडेड रीजन है. एक चीज याद रखना, कई स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया था इन ए गिवन रीजन. तो देखो कितना यहाँ पे 2 पॉइंट है. एक तो 2 माइक्रोकुलाम, एक है -1 माइक्रोकुलाम. तो फाई इज इक्वल टू व्हाट इज नेट चार्ज, ये तो हम लोगों के पास अपॉन एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज द नेट चार्ज? 2 - 1, 2 + 1 ऐसे करेंगे ना, लेकिन दूसरा कौन सा हम लोगों के? -1 माइक्रोकुलाम. तो मींस कितना हो जाएगा? 2 - 1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलाम. देन तो नेट चार्ज कितना हो गया? यहां लिख लीजिए, नेट चार्ज ऑफ द शेडेड रीजन. शेडेड रीजन के लिए कितना हो जाएगा? 2 - 1 यानी 1 माइक्रोकुलाम. एनी डाउट? नेट चार्ज बात कर रहे हैं किसकी? इस वाले शेडेड की. तो एक तो है 2 माइक्रोकुलाम और दूसरा कैसा है? -1 माइक्रोकुलाम. देन 1 माइक्रोकुलाम 10 की पावर -6. पुट अप द वैल्यू ऑफ 8 इंटू 10 की पावर -12. तो मीन्स कितना आएगा? 1/8.85, और ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर +6. सोल्व कीजिए इसे. फाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 मल्टीपल में 8.85 इंटू 10 की पावर 5 कर दो. इसको सोल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है हम लोगों के पास 1 अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी इसकी. 1.3 समथिंग वैल्यू की पावर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स? इज मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम. ओके, नोट इट. ओके, डन. Next question is, I read it, you show it and write down on your notes. Obtain an expression of electric force and electric pressure on the surface of the charged conductor. Draw necessary diagram. तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था और इलेक्ट्रिक प्रेशर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1/2 E स्क्वायर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट. ओके, इन द बॉडी 2018. Find the expression for intensity of electric field at a point due an infinity long straight wire
लैम्डा अपॉन आंसर कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, यूनिफॉर्मली बाय द गाउस लॉ एंड ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम 2017 and 2014. Find the intensity of electric field at the following points due to the uniformly charged spherical sheet. I think 2016. This is a question in 2016. Outside the sheet, outside shell, outside the spherical shell on the surface and the inside 2014. देख रहे हो क्या 2020 में क्या आया, गाउस लॉ का स्टेटमेंट आया, नॉन कंडक्टिंग शीट आई, उसके साथ न्यूमेरिकल आया। 2019 में हम लोगों ने 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल देख लिया 20 में, ठीक है। 2018 में फिर एक क्वेश्चन आया देख लो 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स के होते हैं, आधा हाफ मार्क्स का डायग्राम और डेरिवेशन से, ये भी 2 मार्क्स से, ये 2 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है, इसके साथ एक न्यूमेरिकल था। तो 2019 देखा, 2020 देखा, 2016 देखा, 2000 हम लोगों ने 18 देख लिया, 19 देख लिया, 17 देख लिया, ओके, 2014 में भी देख लिया। क्या है हम लोगों के पास, इससे एक ना एक डेरिवेशन आ रही है, क्लियर, कंपलसरी है, इजी डेरिवेशन है। इसके बाद कैपेसिटेंस वाले से भी एक ना एक डेरिवेशन आती है हर साल। तो बेटाओ शुरू हो जाना, 2 दिन है आपके पास, सैटरडे और संडे, हो ना, फटाफट से इसको कर लेना, क्योंकि अगर ये नहीं किया ना तो 2 मार्क्स हम लोगों के पास गए, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, और भी हैं अभी, चलो। ओके, 2 क्वेश्चन, both question are important for the competition and the best of the numerical. It is totally concept based. ओके, और डियर स्टूडेंट प्लीज ये वाले है ना जो क्लासेस है ना, इसको पूरी देखिएगा। मैंने हमेशा कहा आपको, खैर जो अपने आप के लिए इंपॉर्टेंस है वो रखते ही पूरी। क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज सिचुएटेड इनसाइड अ spherical Gaussian surface of radius 1 centimeter. Find the value of the electric flux emitted from the Gaussian surface. 2015. Okay. Solution देखना है इसका, वेरी सिंपल सॉल्यूशन है कि phi is equal to what is net charge upon epsilon naught. नेट चार्ज बताइए 1 माइक्रोकूलम, क्योंकि डाइपोल, यू नो डाइपोल, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड and opposite charge are placed in a very small distance. It is called dipole ना। तो देखो एक तो हो गया मेरे पास 1 माइक्रोकूलम और दूसरा कितना हो गया 1 माइक्रोकूलम। तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज इज 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी 0। तो देखो डाइपोल है तो उसके लिए नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। ये तो हो गया पैटर्न किसका, किसका पैटर्न हो गया, इसका। सोल्व करने का तरीका कि नेट चार्ज आपने बता दिया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों के पास, 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल आर कीप्ड इन द क्यूब। एक क्यूब है उसमें 5। अच्छा बताओ, एक का नेट चार्ज कितना है 0, तो 5 मल्टीपल में कितना होगा 0, तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका भी आंसर कितना होगा, फ्लक्स 0। तो एक बात बच्चों ध्यान रखना, जब भी हम लोग किसकी बात करेंगे, डाइपोल की बात करेंगे, तो उसका नेट चार्ज कितना हो जाता है हम लोगों के पास 0 होता है, इसलिए उसमें से फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है 0। कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट आएगा, सोल्व करने मत बैठ जाना फॉर्मूला लगा के, क्योंकि जैसे उन्होंने दे दिया ना कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द गाउसियन सरफेस है ना, स्फेरिकल हो गया, फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते हैं स्फेरिकल वाला, और आंसर नहीं आता है क्योंकि चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। वो फॉर्मूला लगाओगे तब भी क्यू की वैल्यू रखोगे, क्यू की वैल्यू रखते 0, आंसर 0 आ जाना है। तो दोनों से कर सकते हैं, तो पता लग गई ना बात को। ओके, तो बी केयरफुल, और कल हम लोग अपना टुमारो विल बी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इज पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। प्लीज वॉच फुल वीडियोज, इट्स फॉर योर बेनिफिट नॉट माई बेनिफिट। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच द फुल वीडियोज एंड full lectures. Okay, thank you very much. Stay in home and be safe.